better in terms of the trade I took. The mistake I made in those trade. We can talk through that. The improvements, right? So let's just go through it quickly so we can be done as soon as possible. I know you all have something to do on weekends. So yeah, on Monday there were no trade for me. For some reason, I wasn't confident enough to do anything on Monday. So I'm just gonna jump back to all the trades I took. On Tuesday, as soon as we opened up on 9:30 opening, as you can see, just gonna mark it out 9:30. If anybody have any question, they can ask me later on. See, this is the 9:30 opening. We pushed back down. We had a little bit of retracement, but I knew that our drawn liquidity to the downside, and we had a big drop here with MSS. We feel this FPG we had on 1 minute, and we were having some reaction. So I took a short from here, targeting this low, and it was just beautiful trade of 31 points, and I was done. I think I did not took any trade on that day anymore. So this was the trade on Tuesday. It's pretty simple. You can count it as a AMD as well. If you say this was a accumulation, manipulation, and little distribution. So all in all, it was 2022 model for me. You can say it is AMD as well there. Just simple 2022 model trade. Nothing crazy about that trade. So let's just move on to the another trade. I'm just gonna keep 1 minute because I took all the trades on 1 minute. I'm not gonna talk about what market did when I did not take those trades. I'm just gonna talk about what my trades were that on every day. So this was the second trade I took on Wednesday. Sorry, when first trade on Tuesday, second trade on Wednesday. It was after lunch, in between lunch session. We had a huge news coming in on that day. We had a huge pump of 200 points nearly, right? Uh, I was waiting for us to give back all the momentum we had on the news day. Like we had 200 points upside momentum. So I was waiting for market to roll roll over and give almost everything up because that's what market does. News में हम ऊपर जाते हैं like 100 200 points or after lunch session we give it back. So we roll over means we come back down, rebalance everything that has been not balanced, and that's what the market did. So I was waiting for shorts after the lunch session, but I got it on lunch session here. As you can see, again we had FPGs on a higher time frame, took short from there, and boom, we had again 31 point trade with the 12 point SL. It's a pretty solid trade there. On Thursday, again same thing. I'm not going, if you notice, I'm not going against the market all the time. It's just that I'm waiting for right time to be there and just get done with my 30 or 15 points TP or SL. I don't care. So here, as you can see, I'm gonna try as much as possible to talk in Hindi. So यहाँ पे ये high था, हमने ये high निकाला. This was also again after the lunch time because I wasn't confident on NFP week to take trades on the New York AM session. So mostly I did take trades on the PM session. As you can see, we took out this high. We wasn't able to take out this high though. Uh, I had my doubts here, and you will be seeing that in my trades as well. Like mm, we had MSS here. We were respecting every FPG was in the line. So I took a step short there, aimed for like 15 points, which is the minimum for me. I did take 17 points on that trade and with the 7 point SL. So it's one gem, two trades, not bad for me. So I try to take minimum as minimum as possible on the days where big news is coming on later on the weekend, on the week. Like on Fridays, we had NFP. So I was trying to be conservative on those days, not
risking much more than I can, and look at that. And that's why I booked it early, and we had a big short drop of like 400 points. See, we can't do anything about those trades. We have to book what we can and get out of the market because I wasn't certain of anything what is coming up. So on Friday after NFP, we had this big drop. So I was looking for longs, right? Because we have to rebalance all this drop somehow on the higher time frame. So I was looking for longs here on live trading session. It was in the I was live on the Discord. Tried to took long with the 27 point SL. Did not work out for me. Though we had a big flux up here, but I was at the wrong time in the market. Again, I tried taking after we settled down on the NFP news and AM session. I came back to the charts after lunch session. We took out these highs. We had really good momentum to the downside, leaving us with this FPG. We feel that FPG had wicked out of it, but I was seeing this great reaction from that FPG. So I took a short from there. And this is the biggest trade on the I took last week, and it worked out well for me. So this was last week was nice week for me. I gained about 3%, 3.5% last week. So it was good for me. That's the all. I think that is all from me. I guess I took one, two, three, four trades, 4 or 5 trades. I may have missed one or two, but these are the trades I am proud of. Right, I didn't do anything wrong or impulsive there, and yeah, last week went as planned. I'm not just waiting for the upcoming weeks. Let's see how it goes. I do go live on Discord with all these trades, not the PM session trades, but AM session trades. I do trade live on here in Discord. So yeah. ऑलराइट फर्स्ट मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ योयो बॉय अगर पॉइंट वाइज देखोगे तो ठीक है जस्ट इमेजिन कि रिस्किंग अ परसेंटेज यू आर नॉट रिस्किंग पॉइंट्स एज सच कि अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट से है उस पर घुसूँ विदाउट केयरिंग मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है तब तो ऑफकोर्स वो सेंस नहीं बनेगा मैं 1:2 अगर मेरा कोई 40 पॉइंट की ट्रेड है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और मैं एक एनक्यू कॉन्ट्रैक्ट से घुस रहा हूँ उसमें भी और एक ट्रेड है जिसमें जो 5 पॉइंट किया स्टॉप लॉस उसमें मैं 15 पॉइंट कमा रहा हूँ एक में 1:2 किया मैंने एक में 1:3 किया तब भी मैं लॉस में रहूंगा बट इफ आई रिस्क परसेंटेज इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स वो प्रॉफिट में आ जाएगा सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इट डज नॉट मैटर कि तुम्हारा वो कैसे काम कर रहा है पॉइंट्स डू नॉट लुक एट द पॉइंट्स लुक एट द आर एंड द परसेंटेज रिस्क तो अगर तुम सब में अगर तुम 3 या 4 ट्रेड जीत रहे हो और तुम एक हार रहे हो और तुमने सब में 1% किया हुआ है रिस्क यू विल बी नेट पॉजिटिव I mean, you don't know what's going on back. So there are some trades I took with 2 contracts as well. So when I'm in profit on those trades, again some much more percentage, and the trade I lost on was only with 1 contract. So it all sets up. So yeah. एंड मान्या इज दिस यू ठीक है आई थिंक कोई और है ये आई एम जस्ट गोना सेंड All right. I'm giving you the space to share your screen. ठीक है हाँ सो या चलो मैं अपनी स्क्रीन दिखा देता हूँ एक बार जस्ट लेट मी जस्ट सेट इट अप माय ट्रेड्स ठीक है तो ये 3 ट्रेड्स थी जो मैंने ली हैं नेट आई एम अप 2% ऑन माय अकाउंट तो नॉट अ बैड वीक फॉर मी मैं मेरे पास 3 पी हैं पर मैं एक ट्रेड नहीं करता क्योंकि आई नीड टू आई लाइक टू कीप एक को एज बैकअप तो मेरी जो पहली थी ओह अच्छा मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं की सॉरी अब दिख जाएगी ये बता देना अगर लोड हो रही है नहीं वरना मैं रिकनेक्ट करता हूँ हाँ विजय आई विल एक्सप्लेन इट विद द बायस आई थिंक अब दिख रही होगी स्क्रीन
बता सकता है कोई अगर दिख रही है? एक बार टाइप कर। ओके, हिरेन कैन टेक इट, द बेस कैन नॉट। आई थिंक अभी भी लोड हो रही है। एक मिनट, लेट मी जस्ट स्टार्ट अगेन। ठीक है। मेरी ज़्यादातर ट्रेड सिंपल थी। जैसे ये फर्स्ट वाली ट्रेड थी। इसमें मैंने क्या किया कि मेरी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल है ट्रेड की, कि मुझे चाहिए कि जिस भी डायरेक्शन में मुझे ट्रेड चाहिए होगी, मुझे 830 से नीचे प्राइस चाहिए होगी अगर मुझे लॉन्ग्स चाहिए। अगर 830 के ऊपर है, आई विल ओनली लुक फॉर शॉर्ट्स। सिर्फ ये कंडीशन नहीं है ऑफ कोर्स, मुझे एक हायर टाइम फ्रेम पीरियड चाहिए, जैसे इस पे 1 घंटे का था और एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप उसको ओवरलैप कर रहा था, एंड अगर देखोगे तो एक 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप भी था। सो दिस वाज़ ओवरऑल अ वेरी गुड ट्रेड फॉर मी। प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, ये 3 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बनाया, मिड उससे नीचे, एंड आई एंटर्ड। आई एग्जिटेड अराउंड 8:30 के ओपन से थोड़ा नीचे, इवन दो मेरा टारगेट इनिशियली यही था। 8:30 ओपन मेरा टारगेट था, बट आई थिंक ये मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा था। जब वो रिजेक्ट करना शुरू हो गया, मुझे इसको निकलना पड़ गया। तो इससे मैं एक चीज़ सीख गया कि अगर वो 8:30 ओपन के आस-पास है एंड इट हैज़न्ट गिवन मी अ लिक्विडिटी स्वीप, जैसे अगर ये 15 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप मुझे मिल जाती, देन आई वुड बी मोर कंफर्टेबल कि मैं इसको होल्ड करके बैठ जाता। तो इस मिस्टेक इस ट्रेड में या अब तो आई थिंक आई एम इवन ऑन अ लैपटॉप, इट शुड नॉट बी एन इश्यू। बट चिंता मत करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर अगर नहीं देख पा रहे हो, इट्स मोस्टली माय नेटवर्क, क्योंकि मैं हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ आज, कल मैं वापस घर जाऊँगा। ठीक है। आई थिंक हाँ, मुझे एंट्री मिली, एग्ज़िट मैंने मिस अप कर दिया, एंट्री ठीक थी। अगर मैंने एग्ज़िट कर दिया होता सही टाइम पे, सो ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था 1:2 पे, इट वाज़ 1.8 मुझे हाईएस्ट दिखा था प्रॉफ़िट। तो इस दिन मुझे पार्शियल्स बुक करने पड़ गए, तो आई वेंट इनटू नेगेटिव आरआर थोड़ा-सा, बट ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड पे फार बेटर ट्रेड, हाँ, लोड हो रहा है ना? ठीक है। इस पे भी सेम चीज़ होगी, अगर देखोगे कि प्राइस ऊपर गई, नीचे आती है 8:30 ओपन से, 10:30 के बाद 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, ये 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है, मुझे एंट्री मिलती है। ये मल्टीपल ऑर्डर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बीच में मुझसे ना गलती से एग्ज़िट हो गई थी ट्रेड, सो आई जस्ट री-एंटर्ड एंड आई बुक्ड जैसे ही वो रेजिस्ट करने लग गया। यही चीज़ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये गलती कर चुकी थी, इसलिए मैंने कर लिया, क्योंकि अगेन यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं है 15 मिनट की। अ, और लास्ट ट्रेड कल की थी, एंड इस पे द ओनली मिस्टेक व्हिच आई मेड वाज़, इवन दो हाँ, प्राइस ऊपर जा रही थी, उसने प्रीवियस डे हाई भी टेक आउट कर दिया था, एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप भी दे दिया था। जो मेरी मिस्टेक इसमें थी, इसमें ना 4 घंटे का कोई फेयर वैल्यू गैप था नहीं, जो मैंने पीछे देखा हुआ था। मैं गलत टाइम का फेयर वैल्यू गैप देख रहा था, तो वहाँ पर कोई हायर टाइम फ्रेम कॉन्फिडेंस था ही नहीं। जब मार्केट ऊपर एक पड़ा हुआ था इसके, एक फेयर वैल्यू गैप, अगर आप जाके चेक करोगे तो जब मार्केट ऊपर गई, उसको टैप किया, तो नीचे फॉल करने लग गया। तो का ट्रेड आइडिया तब भी अच्छा था, अगर यहाँ पे 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप होता, चलो वो मेरी मिस्टेक थी। वेरी गुड थिंग इज़ आई डोंट थिंक एनीवन कॉपीड दिस ट्रेड। तो हाँ, ओवरऑल मेरा हफ्ता काफ़ी अच्छा गया। 2% में बुरा नहीं है। मैं ज़्यादा रश भी नहीं करने वाला हूँ। अब जो नेक्स्ट चीज़ जो एक और चीज़ मुझे दिखानी है, वो है शेयर, हाँ, जो मुझे नेक्स्ट चीज़ दिखानी थी, वो थी एक ट्रेड जो मुझसे मिस हो गई थी एनएफपी वाले दिन, जब मुझे लॉन्ग जाना था। आई थिंक ये वाली ये चीज़ ये ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि मैं जो वो क्या कहते हैं इसको, लिमिट ऑर्डर था। दैट वाज़ एग्ज़ैक्टली उस प्राइस पॉइंट पे 22.5, और अगर देखोगे तो इसका लो भी 4.25 पे आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर देखोगे ना, स्प्रेड होता है थोड़ा-सा। मोस्ट केसेस पे तुम फिल हो जाओगे तब भी, बट कभी-कभार नहीं होगे, जैसे इसमें मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उठाने पड़े थे। इस पे आई थिंक आई वाज़ 5 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स, इवन दो वो वैसे ज़्यादा नहीं है, डॉलर वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं हुई। $25 वो पॉइंट हुआ, बट क्योंकि वो ऑलमोस्ट 10 हो गए सेपरेटेड, तो वो मुझे फिल नहीं किया, एक भी कॉन्ट्रैक्ट में। मुझसे ये ट्रेड मिस हो गई, वरना दिस वाज़ अ वेरी गुड ट्रेड। अ, आई थिंक मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था। ये एक प्लेबुक सेटअप है बिल्कुल, कि हर एक
अगर कोई भी एनएफपी, सीपीआई या एक और होता है ना एनएफपी, सीपीआई और कौन-सा न्यूज़ इवेंट होता है एक? द बिग वन अ, हाँ, एफओएमसी सब में से एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी। अगर तुम 15 मिनट में जाके देखोगे ना सब इन सबको अ, उप्स नॉट दिस वन सॉरी प्राइस इनिशियली ना 2 चीज़ें ही करने वाली है। एक तो ये सब में वो विक बनाएगी, अगर वो विक नहीं बनाती तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना देगी, जैसे यहाँ बनाया। हमारे टाइम पे मतलब कि 9:30 ओपन के बाद उसको टैप करेगी और जिस भी डायरेक्शन जाना है वो जाती रहेगी। अगर तुम 3 या 5 मिनट पे जाओगे ना, तुम्हें एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा जहाँ से तुम लॉन्ग या शॉर्ट जा सकते हो। एंड इफ यू डोंट डू एनीथिंग एंड ओनली डू दिस कंटीन्यूअसली, इसकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है। तो ओवरऑल अगर तुम्हें पूरे महीने में 3 ही ट्रेड्स मिलेंगी, बट यू विल हैव लाइक अ 75% हिट रेट। इस पे तुम अगर सिर्फ 1% रिस्क कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सब्र है, तो तुम एक्चुअली पैसे कमा सकते हो। बहुत धीरे कमाओगे स्टार्टिंग में, बट वन ऑफ द गुड वेज टू मेक मनी। तो इस पे हाँ, मैं मिस हो गई क्योंकि मैं मेरी एंट्री थोड़ी वो थी, मुझे घुस जाना चाहिए था मैनुअली, बट ऑलराइट कुछ नहीं होता। और उसके अलावा मैंने कुछ और किया नहीं पूरे हफ्ते। तो मेरी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स पूरे हफ्ते की 3 ही थी, जिसमें से मैं 1 हार गया। अबे यार! शिट, इसको हटाते कैसे हैं? नॉट माय एपेक्स। ठीक है। तो मैं एक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स जल्दी से, जिन लोगों ने लास्ट टाइम मिस कर दिया होगा। अ, मैंने कहाँ ड्रॉ किया था इसको? हाँ, ठीक है, मेरी ड्राइंग पड़ी हुई है। फर्स्ट चीज़ होती है जो मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू किसी और चीज़ की। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ होता है फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप 2 प्रकार के होते हैं। फेयर वैल्यू गैप एक प्रकार की इनएफिशिएंसी है। तो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, जो फर्स्ट कैंडल होगी, ये ऐसा मान लो थोड़ी है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है कि फर्स्ट कैंडल्स। अबे यार, मैं पागल हूँ। या 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 जस्ट टेल मी इफ यू कैन सी इट। ठीक है, जस्ट हाँ, 1 मिनट ये ये जल्दी हो जाए। सेटिंग नहीं, इट्स मेरा वाईफ़ाई ना, मैं उस पे हूँ हॉटस्पॉट पे, तो कभी-कभार इट डज़ नॉट वर्क ढंग से। 1 मिनट में हाँ, मैं एक और बार ट्राई करता हूँ, ये ज़्यादा सेंस बनाएगा। शायद से मैं हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैं वही चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो मैं खुद ही करता हूँ सबसे पहले। और सबसे पहली चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ होता है फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स आईसीटी में एक इनएफिशिएंसी होती हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेड आइडिया फॉर्म करने के लिए, एग्ज़ीक्यूट करने के लिए और एनालिसिस के लिए। तो एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें पहले कैंडल का हाई तीसरे कैंडल के लो को ओवरलैप नहीं करेगा। तो अगर तो देखोगे तो ये जो गैप बन रहा है इन दोनों विक्स के बीच में, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है। सेम अ, इज़ इट नॉट विज़िबल अगेन? अ, ठीक है, इट इज़ विज़िबल फॉर सम पीपल नाउ, इट्स नॉट विज़िबल फॉर यू। अ, हाँ, मे बी दैट इज़ द इश्यू कि ये ना दिस टेक्स थोड़ा-सा ज़्यादा नेटवर्क कंपेयर। एक्चुअली गाइस टॉक पे आ जाओ, वहाँ पे ना स्क्रीन शेयर काम करता है मेरा। ठीक है, सब आ गए। हाँ। तो बस फेयर वैल्यू आपकी एक्सप्लेनेशन
आई थिंक एक बार बस बता दो स्क्रीन दिख रही है या नहीं वापस से? अगर नहीं दिख रही है हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो हाँ, मैं जल्दी से एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये फेयर वैल्यू गैप होता है, तो इसको आइडेंटिफ़ाई करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। बस ये देखना कि जो फर्स्ट कैंडलस्टिक हो और थर्ड कैंडलस्टिक हो, उसके विक ओवरलैप नहीं कर रहे, तो वो एक फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप का यूज़ ये आता है कि अगर हम कोई फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इसको टैप करेगी और वापस ऊपर जाएगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर फेयर वैल्यू गैप काम करे, ठीक है? पर ऐसा समझ लो कि अगर हमें किसी कहीं पे हमें एक लॉन्ग्स पे एंट्री लेनी है, तो हम एक फेयर वैल्यू गैप पे अपना टारगेट रख सकते हैं या फिर बिल्कुल ओपनिंग प्राइस पे, यहाँ पर मैं 50% पे ही घुसता हूँ। अब 50% में घुसने के रीज़न्स ये होते हैं कि जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो मैनेज हो जाता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं अपना बस रिस्क मैनेज कर पाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग भी सेम चीज़ करो और जब तुम इस पे घुसोगे तो याद रखना 2 स्टॉप टाइप ऑफ स्टॉप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट स्टॉप होता है कि तुम इसके विक तक जाओ और टारगेट जो भी ऊपर लिक्विडिटी हो और सेकंड होता है कि विक की जगह सिर्फ बॉडी पे लगा दो। इस पे तुम ज़्यादा सेफ रहते हो ऑफ कोर्स डिपेंडिंग कि तुम कैसी कंडीशन है मार्केट की तुम अपना स्टॉप लॉस कर सकते हो। मैं बॉडीज़ पे तभी लगाता हूँ जब एनएफपी या कोई ऐसा न्यूज़ इवेंट के बाद ट्रेडिंग मेरी स्टार्ट होती है उस दिन क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस अब जो भी इसका ऑब्जेक्टिव होगा वो सीधा कंप्लीट कर देगी बिना ज़्यादा रिट्रेसमेंट्स देने के। नॉर्मली मैं पूरा स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। ये फेयर वैल्यू कैप्स हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। डे 4 घंटे, 1 घंटे के और 15 मिनट के मेरे सिर्फ़ एनालिसिस के लिए होते हैं और एग्ज़ीक्यूशन पे मैं 3 और 5 मिनट यूज़ करता हूँ। सेकंड चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम क्लियर की थी वो होते हैं ऑडियो ब्लॉक्स। ऑडियो ब्लॉक भी एक टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें क्या होगा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल ढूँढ लेता हूँ अच्छा ऑडियो ब्लॉक का। ठीक है, 15 मिनट पे चल लो। हाँ, कि ये 2 काइंड ऑफ ऑडियो ब्लॉक बन जाएँगे, एक होगा बुलिश ऑडियो ब्लॉक, एक होगा बेयरिश ऑडियो ब्लॉक। तो एक बुलिश ऑडियो ब्लॉक होता है कि जब एक डाउन क्लोज़ कैंडल मतलब कि एक रेड कैंडल लिक्विडिटी ले और उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों अभी दोनों को मत कंसिडर करो, आप इसको ही कंसिडर कर लो। ये एक डाउन क्लोज़ कैंडल थी, जिसने लिक्विडिटी ली और उसके बाद एक बड़ा मूव आ गया। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस जब इस पे और इसको भी कंबाइन कर सकते हो क्योंकि ये 2 सीरीज़ ऑफ डाउन क्लोज़ कैंडल हो गई। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ और मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जिस प्राइस इस पे टैप करे, तो मुझे कोई रिएक्शन मिलेगा। तो इसको यूज़ करने के तरीके बहुत हैं। एक अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे हूँ और मैं यहाँ पर रिएक्शन देखता हूँ कोई मार्केट आती है, ऊपर जाती है और ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो अब देखोगे 2 तरीके हैं एंटर करने के। एक जो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है मेरे हिसाब से वो होता है कि तुम सीधा घुस जाओ, ठीक है? अगर तुम सीधा घुस जाओगे तो चांसेस ये हैं कि वो तुम्हें विक आउट कर दे या 100 चीज़ें कर दे और तुम्हें कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी कि क्या ये ऑडियो ब्लॉक काम कर रहा है या नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा ये ऑडियो ब्लॉक काम कर रहा है या नहीं? उसका बेस्ट तरीका होता है कि जब प्राइस आए यहाँ पर, तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पे 3 मिनट या 5 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाए और अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल गई ऊपर की तरफ और तुम्हें एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया, तुम उसकी 50 या उस पे एंटर कर सकते हो, अपना स्टॉप कम कर सकते हो और ऊपर की तरफ जा सकते हो। सेम बेयरिश वाला होगा, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल और दिखा देता हूँ जो काम किया हुआ ऑडियो ब्लॉक। मैं ऑडियो ब्लॉक को सिर्फ़ 15 मिनट पे यूज़ करता हूँ एनालिसिस के लिए, मैं एंट्री के लिए यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ऑडियो ब्लॉक्स के साथ उतना। बट हाँ एक अच्छा ये एक बेयरिश ऑडियो ब्लॉक हुआ, जिसमें एक सीरीज़ ऑफ अप क्लोज़ कैंडल ने लिक्विडिटी ली और फिर एक बड़ा मूव आ गया। ठीक है। अब कौन से ऑडियो ब्लॉक सबसे ज़्यादा काम करेंगे, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा डेली बायस क्या है। मैं डेली बायस पे अभी वापस आता हूँ। डे डे तुम्हारा डेली बायस अगर मैच कर रहा है, तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम बायस मैच कर रहा है और ऑर्डर फ्लो काम कर रहा है, तो ये ऑडियो ब्लॉक्स अच्छे से काम करेंगे, वरना देखो ये आराम से डिसरिस्पेक्ट हो जाएँगे। सेम एफईजीज़ के साथ है। अब अगर तुम यहाँ देखोगे और तुम्हारे किल ज़ोन के अंदर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखना, ये एक ऑडियो ब्लॉक हुआ, सीरीज़ ऑफ अप क्लोज़ कैंडल जिसने लिक्विडिटी ली अ, एक मूव एक्चुअली उल्टा कर दो इसको। ये ब्रेकर हो गया, ठीक है, ब्रेकर पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता। डाउन क्लोज़ कैंडल इसने लिक्विडिटी दी इंटरनल यहाँ पे भी एक लो को टेक आउट किया सॉरी स्विंग लो को टेक आउट किया और ऊपर मोमेंटम आ गया। तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्या बन गया?
ये दोनों कैंडलस्टिक को कंबाइन कर दो। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने बोला था कि जब ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा तो मैं एक अप मूव मिलेगा। अगर मैं पीछे चले जाऊँ तो यहाँ पे एक एंट्री पक्का बन रही होगी। एक अच्छा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस हमारा किल जोन स्टार्ट होता है 9:30 को, उस पे टैप करती है, ऊपर जाती है, रेजिस्ट करी जा रही है। देख लो कैसे विक छोड़ी जा रही है। जो बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक जो बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होंगे उसमें कैंडल क्लोजर तुम्हें 50% के नीचे नहीं मिलेगा। मैं एक हासिल आई जस्ट कंप्लीट माय फ्लो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अ, ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, wick बनाया। समवन वाज सेइंग मैं ना म्यूट कर रहा हूँ सबको, जैसे मेरा फ्लो खराब ना हो। ठीक है। ऊपर गई मार्केट, वापस नीचे आई। अब इम्पोर्टेंस ये होगी एक ऑर्डर ब्लॉक की, मैं नहीं चाहूंगा कि अगर ये कैंडल क्लोज ना इसके नीचे हो जाती 50% नीचे, तो ये बहुत वीक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। मुझे वो नहीं देखना है। मुझे देखना है कि प्राइस या फिर नीचे ही नहीं आ पा रही है, या इस 50% के नीचे अगर जा रही है तो विक बनाई जा रही है। यहाँ पे विक बनाई जा रही है। अगर मैं 5 मिनट पे जाऊँ पहले, तो मैं फेयर वैल्यू गैप ढूँढूँगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक फेयर वैल्यू गैप ढूँढूँगा। 5 मिनट में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कुछ नहीं होता। मैं 3 मिनट पे ढूँढूँगा। क्या 3 मिनट में मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? कोई अच्छा फेयर वैल्यू गैप विद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एक फेयर वैल्यू गैप ये है, ठीक है? अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये फिल हो जाए। फिल हो गया, क्लीन। दिस इज़ अ वेरी क्लीन सेटअप, ठीक है? अगर देखोगे 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन आया, मार्केट ऊपर गई, छोटा-सा एमएसएस दिया, 3 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे वापस आया और ऊपर भाग गई। और जहाँ तक से ये वाली ट्रेड मैंने कब की है ये? मंडे की। अच्छा नहीं, मंडे को मैंने ली नहीं थी ये ट्रेड, क्योंकि न्यूज़ आ रही थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा सेटअप है। अगर अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ तुम 15 मिनट और उस चीज़ के बेसिस पे तुम उठाते जाओगे। तुम्हें अपना मॉडल बनाना पड़ेगा। तो अगर तुम देखोगे, यहाँ पे एक और चीज़ थी। यहाँ पे एक 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। एक 15 मिनट का बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक 4 घंटे का 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप, एक 3 मिनट का फेयर वैल्यू गैप और एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। मेरे पास इतने सारे कॉन्फिडेंस आ गए, और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या है कि मार्केट सिर्फ़ ऊपर जाए जा रही है। रिट्रेस करती, ऊपर जाती, रिट्रेस करती, ऊपर जाती। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो मेरा डेली बायस, अगर मैं डे पे जाऊँगा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है तुम्हारा डेली बायस। अगर जब मैंने स्टार्ट आउट किया था तब मैं तभी ट्रेड करता था जब मेरे पास डेली बायस होता था। अगर तुम्हारे पास डेली बायस है तो तुम बहुत ईज़िली अपनी हिट रेट बढ़ा सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस दिन, ठीक है? जब ये दिन स्टार्ट नहीं हुआ था, एक दिन मैं पीछे कर देता हूँ तो बात अच्छे से समझ आ जाएगा। अब डेली बायस के मेरे 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि मैं देखूँ कि मार्केट अ, एक चीज़ हो जाती है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? सेंटिमेंटल, फंडामेंटल और टेक्निकल। मोस्ट केसेस मैं फंडामेंटल्स पे उतना ध्यान तब तक नहीं देता हूँ जब तक कोई मेजर न्यूज़ नहीं आती है, ठीक है? कि एफओएमसी, एनएफपी, ब्ला ब्ला ब्ला, या कोई ग्लोबल इवेंट्स। दूसरी चीज़ मेरे लिए आ जाती है सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल में तुम कुछ नहीं करते, तुम बस जाके देखते हो कि मार्केट क्या है, क्या मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। और फिर होती है लास्ट टेक्निकल। टेक्निकल ज़्यादा तुम्हें काम आने वाली है, क्योंकि तुम इंट्राडे करने वाले हो मोस्ट केसेस पे, एंड आई डोंट थिंक कोई यहाँ पे स्विंग करने वाला है। तो बाकी 2 को अभी थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। मुझे बस इतना पता है हम एक बुल मार्केट में हैं। लॉजिकली ऑयल के प्राइसेस नीचे जाने चाहिए, क्योंकि डीएक्सवाई ऊपर जा रहा है, लेकिन अब सब कुछ साथ में चल रहा है, और ये भी एक नए रेंज पे चल रहा है, कि जहाँ पर ये सब जो इन्फॉर्मेशन है इसको इग्नोर कर दो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? क्योंकि ये एक चीज़ होती है इब्डा रेंज, कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारे इनएफिशिएंसी अब काम करें। ये लो प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे, क्योंकि आज से 240 दिन पहले का जो भी पीडी अरे होगा, वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होगा। उसके बाद उसकी वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जिस फर्म ने प्राइस एक्शन फ़ॉलो किया था, वो अब एग्ज़िस्ट कर भी रही है, या उनके ऑर्डर अभी भी पड़े हुए हैं। तो हम थोड़े टाइम के लिए उसको उस बात को भी इग्नोर कर दो। अब बस ये सोचो कि मेरे पास पीछे कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, मैं कंसिडर नहीं कर रहा उसको। हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट डे वो नहीं हो जाएगा? सबसे ईज़ी आंसर होगा, मुझे नहीं पता होता, ठीक है? तुम्हारा डेली बायस एक एक अंदाज़ा है, जिस पे तुम्हें टिके रहना है मोस्ट केसेस पे। क्योंकि अगर तुम डेली बायस पे टिके हुए हो और तुम्हारा डेली बायस गलत है, तो तुम्हें ट्रेड ही नहीं मिलेगी, तो तुम बच जाओगे। अगर तुम्हें ट्रेड मिल गई और वो सही हो गई, तो तुम्हें एक्चुअली बहुत अच्छी 1:2, 1:3 ट्रेड मिल जाएगी, की ट्रेड मिल जाएगी। 2 तरीके हैं डेली बायस लाने के।
फर्स्ट तरीका है टीटी ट्रेड्स का मैकेनिकल स्ट्रैटेजी। मैकेनिकल में तुम कुछ नहीं करते, तुम बस ये देखते हो कि जो इस दिन 3 कैंडल्स को चूज़ करो कहीं पर भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट, ये सेकंड और एक जो तुम्हारी बनने वाली है। फर्स्ट कैंडल ये थी, ये इसका हाई था, हाई में बहुत ऊपर डिस्प्लेसमेंट से क्लोज़ हुआ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी, वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर बनेगी। अब ये तब भी डिस्प्लेसमेंट है। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आ रही है। अगर मुझे पता है कि हम एक बुल मार्केट में हैं और सब कुछ रैली कर रहा है, सीएल भी साथ ही साथ चल रहा है, मैं शॉर्ट्स शॉर्ट्स उतने ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं होऊँगा। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं शॉर्ट्स नहीं लूँगा, बट आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन लॉन्ग्स। तो अगर जैसे अ, नेक्स्ट डे का भी बायस मेरा बुलिश ही होगा। इवन तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, मैं ये मान रहा हूँ कि ये ब्रेक अवे बन जाएगा या बाद में ट्रेड इन होगा। तो नेक्स्ट फिर से अब ये मुझे पता चल गया ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो ट्रेड इन नहीं हुआ, ये एक और बन गया। फिर से मोमेंटम आया है, आई विल स्टिल स्टे बुलिश। व्हाई? बिकॉज़ मुझे पता है कि अब ये ट्रेड नहीं होने वाला, ये भी मोस्ट लाइकली ट्रेड नहीं होगा, पर ये ट्रेड हो सकता है, क्यों? ये अब देखो कितनी अच्छी कैंडल बन रही थी, अचानक से एक इनडिसिजन कैंडल बन गई। अगर ये इनडिसिजन कैंडल बनी है, तो मोस्ट लाइकली प्राइस कहाँ जा सकती है? यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है या यहाँ जा सकती है। अब वो इतना रिट्रेस क्यों करेगी? मैक्सिमम यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी। अब इसमें मैं डाउट में हूँ कि अब मुझे पता चल चुका है कि अब ज़्यादा रिस्की है कि मैं लॉन्ग्स ढूँढूँ एक ऐसे दिन पे जब प्राइस नीचे जाने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, मैं या फिर 4 घंटे पे चले जाऊँगा और मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा कहीं पर कि तो अगर मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा तो मुझे सबसे पहली चीज़ क्या दिखाई देगी? ये 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप, इवन दो ये रिप्राइस हो गया है, ये अच्छा ये किल ज़ोन में रिप्राइस हुआ था तो अब वापस आने का कोई पॉइंट नहीं है। ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर यहाँ रिप्राइस करेगा या थोड़ा-सा और नीचे। इवन दो अब मैं बेयरिश कब तक हूँ? जब तक अगर प्राइस कोई भी पीडी अरे से मुझे रिएक्शन दे दे 4 घंटे के, मेरे किल ज़ोन पे, तो मैं शॉट्स नहीं लेने वाला उस सिचुएशन पे। सिंपली बिकॉज़ मुझे पता है कि मार्केट ऊपर रैली की जा रही है, मार्केट को एक बार नीचे आकर रिप्राइस कुछ कर रही है और हम ओवरऑल बुलिश हैं, तो मेरा डेली वाइज़ ऑटोमैटिकली मेरे छोटे एक कम छोटे टाइम फ्रेम पे जो 4 घंटा है, मैं उस पे ट्रेड ले सकता हूँ। इसके बाद मैं एक और ट्रिक आपको बता दूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ। मार्केट नीचे आती है 6 एएम, ये 6 एएम हुआ हमारा, अ, ये पीडीआरए डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ है। मैंने क्या हुआ था कि पीडीआरए कब मेरा ऑर्डर ब्लॉक कब डिसरिस्पेक्ट होगा? जब कोई भी कैंडल 50% नीचे क्लोज़ हो जाए। अब तक वो ऐसा हुआ नहीं है। नेक्स्ट कैंडल नहीं हुआ डिसरिस्पेक्ट, मेरा किल ज़ोन है, मार्केट इसको टैप करता है। एक नीचे कुछ 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था हमारा, इसको इतना नोटिस मत करो, 4 घंटे पे फ़ोकस करना अभी। ये सब हटा देता हूँ। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अब तो मुझे पता ही है कि मेरी ड्रॉ क्या बन गई, ऑटोमैटिकली मेरी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये बन गई। तो मैं जो भी ट्रेड फ़ॉर्म करूँगा, इसके आस-पास करूँगा। अब ये चीज़ है कि हाँ, तुम्हारे तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, तुम्हारे पास तुम्हारा डेली बायस हो सकता है, 4 घंटे का हो सकता है, लेकिन तुम लोअर टाइम फ्रेम पे मेस अप कर दो, जो मैं अभी अब खुद इम्प्रूव कर रहा हूँ, बट ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल। सेकंड चीज़ जो मैं करता हूँ, जैसे मैंने बताया ना कभी-कभार तुम्हें डेली बायस नहीं मिलता है, तुम ये सोचा करो तब अगर डे मेरी 4 घंटे की कैंडलस्टिक्स डे हैं, तो प्राइस कहाँ जाएगी? अगर मुझे पता है कि प्राइस को बस रिप्राइस करना है और कुछ नहीं करना है, तो वो रिट्रेसमेंट देगी। अब वो रिट्रेसमेंट कब देगी? यहाँ पर आ जाता है टाइम एंड प्राइस। टाइम एंड प्राइस मैं कैसे मैच करता हूँ? अगर मैं 4 घंटे टाइम फ्रेम पे ये देखता हूँ कि नॉन किल ज़ोन आवर्स पे मार्केट नीचे जा रही है और मेरे किल ज़ोन आवर पे एक बड़ा टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक रिप्राइस कर रही है और ऊपर जा रही है, तो मैं ऑटोमैटिकली अपनी क्लोज़ेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी लूँगा, जो एक स्ट्रिंग हाई या लो होगा और उसको टारगेट करूँगा, अपनी एंट्री उसके साथ अलाइन कर लूँगा। ये मैं एडवाइस तभी करूँगा जब तुम डे वाली चीज़ पे बहुत अच्छे हो चुके हो। 4 घंटे पे अगर तुम ये सेम चीज़ कर रहे हो, तुम्हें ट्रेड ज़्यादा मिलेंगी, पर अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है, तो तुम मिस अप कर दोगे और तुम एक्चुअली लॉस ले सकते हो ज़्यादा। फ़ोकस ये करो तुम अपनी ट्रेड्स 1 महीने में कितनी कम कर सकते हो और तुम सिर्फ़ वही दिन ट्रेड करो जिस पे तुम्हारा डेली बायस बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे ना डेली बायस इतना ज़्यादा क्लियर होता है कि तुम्हें वही नहीं होता डाउट। जैसे एक मैं अच्छा दिखा देता हूँ। मैं प्लैटिनम आजकल मैंने ट्रेड नहीं किया अब तक, बट मैं सोच रहा हूँ इसको करने की क्योंकि इसका प्राइस एक्शन अच्छा है। भूल जाओ ये प्लैटिनम प्लैटिनम थोड़े टाइम के लिए। अ, वेयर डिड इट गो? नॉट दिस। गोलेम, गोलेम, थैंक यू फॉर थैंक
क्या-क्या? उसको निकाल दिया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लैटिनम को ले लो, ठीक है? ये 1 दिन का है, वे ये मैं ना बहुत गंदी गालियाँ देना शुरू कर दूँगा और फिर भाई देख लेना। गुड, वही कर रहा हूँ मैं, इसको बैन ही कर रहा हूँ मैं। हाँ, वेरी सॉरी फॉर दैट गाइज़, ठीक है? कि लेट्स टेक दिस फॉर एग्ज़ाम्पल, कहाँ गई वो ट्रेड प्लैटिनम की? प्लैटिनम था गोल्ड था। मैं एक क्लियर दिन दिख रहा हूँ जहाँ पे मुझे अपना बायस पता हो और मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ। ये दिस वाज़न्ट इट, आई थिंक 4 घंटे पे था वो। ठीक है, आई गेस इसको ले लो। अगर वेट, मैंने ना उसको नोट डाउन किया हुआ है। 1 मिनट दो, मैंने उसको ना आई आई वाज़ लुकिंग एट दैट सेम ट्रेड। 1 मिनट गाइस। ये मेरी प्लेबुक है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता अभी। आई विल रिलीज़ इट व्हेन इट्स कंप्लीट। एंड ऑनेस्टली वो काफ़ी अच्छी प्लेबुक बना ली है मैंने अब सारे ऑलमोस्ट मेरे पास एसेट क्लास में डाइवर्सिफ़ाई कर रहा हूँ, एक ही रीज़न से, क्योंकि अब मेरे पास अकाउंट्स अगर ज़्यादा हैं, तो मैं सबको एक साथ ना ट्रेड करके अलग-अलग दिन अलग-अलग एसेट्स को ट्रेड करूँ। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ़ ईएस ट्रेड किया था और मैं कुछ और ट्रेड नहीं करता था। मेरा पे आउट ईएस पे ही आया था, फिर मैंने बाकी सब ट्राई किया। तो ज़्यादा अच्छा है, यही होता है स्टार्टिंग में, तुम एक एसेट क्लास लो, चाहे सीएल हो, चाहे ईएस हो या प्लैटिनम हो या नैसडैक हो, और उससे स्टिक करो। बेस्ट चॉइस अगर तुम स्टार्ट आउट कर रहे हो छोटे अकाउंट्स पे, तो ईएस मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था, इवन एनक्यू भी अच्छा है, इन दोनों से स्टिक करो और एक को ही ट्रेड करो स्टार्टिंग में। मैं ये एडवाइस कभी नहीं दूँगा, दोनों को करो। एक पे तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और उसके बाद तुम्हें डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। कहाँ गया? 1 मिनट गाइस, मैंने नहीं, प्लैटिनम ही था, कहाँ चला गया? नो, ये वाला नहीं है। आई थिंक मैंने ना वो ट्रेल गुम कर दी। ठीक है, मैं कोई ऐसा दिन दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे पता था मेरा बायस क्लियर है। एक दिन में चले जाओ, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। सब हटा दो, ठीक है। ये सबसे ईज़ीएस्ट चीज़ होगी बुल मार्केट में, हाउ कैन यू गेट योर बायस टू बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है? ये काफ़ी ईज़ी हो जाएगा समझना, ठीक है? कि तुम्हें बेस्ट ट्रेड कहाँ मिलेगी। अब तुम कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है? तुम देखते हो मार्केट ऊपर जा रही है, अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस हैं? एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? तुम देखते हो जैसे मैंने बताया था मैकेनिकल मॉडल ऑफ डेली बायस, अगर प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो इन फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कर जाएगी। मेरा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो ट्रेड करेगी वो ये होगा और सेकंड ये होगा, और उसके बाद और उस पे अगर मुझे ट्रेड मिलती है तभी मैं, तो लॉजिकली अभी मेरा बायस क्या हो गया? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस पे ट्रेड करेगी, इस पे ट्रेड करेगी और फिर ऊपर जाएगी। तो मैं लॉन्ग्स ढूंढ रहा हूँ आफ्टर ये फेयर वैल्यू गैप टैप हो गए हैं। तो 4 घंटे पे जाके मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि कहाँ से मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एक चीज़ होती है जो मैं यूज़ नहीं करता, ना मैं मेंशन करने वाला हूँ क्या होता है, मैं इग्नोर ही कर देता हूँ अभी के लिए उसको। और ये 4 घंटे के 2 फेयर वैल्यू गैप हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि 4 घंटे का एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप, अ, इसको मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, और ये बस याद रखना ये डे के हैं, ये मैं मार्क कर सकता हूँ, हाँ। ये 1 डे का फेयर वैल्यू गैप है, ये 1 डे का फेयर वैल्यू गैप है। 1 डे का, ठीक है। मुझे पता है मैं लॉन्ग्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं अलाइन करूँगा प्राइस एंड टाइम। मैं 10 से पहले ट्रेड नहीं लेता, तो मैं 10 एएम मार्क कर देता हूँ। ये क्या हुआ? ये 2 पीएम हुआ मंडे का, ठीक है। प्राइस जाती है, नीचे जाती रहती है, जाती है 2 एएम, 6 एएम, नेक्स्ट कैंडलस्टिक मेरी होगी जिस पे मैं ट्रेड लूँगा, तो मैं 1 घंटे पे जाऊँगा। अभी ये डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ है एफवीजी, क्योंकि ये 1 दिन का फेयर वैल्यू गैप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो ये विक बन सकती है आराम से, है ना? 9 एएम,
नेक्स्ट कैंडलस्टिक मेरी होगी, तो मैं देखूँगा कि आस-पास क्या है। आस-पास 9 एएम के ये ऑर्डर ब्लॉक है जो होल्ड नहीं कर पाया है और नीचे बस लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। लिक्विडिटी ठीक है। और कौन-सी लिक्विडिटी ले ली है? ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हो गई है 1 घंटे की। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ गया? टेकन। नेक्स्ट चीज़ मैं जाऊँगा 15 मिनट पे। अब इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है मेरा। वो होता है कि मुझे देखना क्या है? मुझे देखना है कि 15 मिनट पे कोई ऐसी चीज़ है जो प्राइस को वापस ऊपर पुश कर दे। ये वाला ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है। तो मुझे देखना है कि क्या रिस्पेक्ट हो रहा है और क्या क्या पता ये अब मेरे माइंड में 2 चीज़ें चल रही हैं। मेरा फर्स्ट रिएक्शन आ सकता है इससे और सेकंड रिएक्शन आ सकता है इस लिक्विडिटी को टेक आउट करने के बाद। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस वेट करूँगा। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ये फर्स्ट 15 मिनट्स हैं। मेरा मैक्रो है 950 से कहाँ तक 950 से 1010। मैं बताऊँगा कि मैक्रो यूज़ कैसे करते हैं। मैं सारे मैक्रोज़ नहीं यूज़ करता, मैं बस ये वाला यूज़ करता हूँ 950 से 1010 वाला। अगर मैं जाऊँ, कोई रिएक्शन अभी आया नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट आ गई, मेरी फर्स्ट एंट्री। ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होगी अगर मैं इस स्वीप का वेट करूँ? क्यों? रीज़निंग मेरी ये होगी कि अगर ये लिक्विडिटी स्वीप मुझे एक और इंटरनल स्वीप दे देता है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन ठीक है, मैं हूँ सॉरी, इसका कौन-सा होगा? नॉर्मली क्योंकि ये कोई वो वाला दिन नहीं है जहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ फालतू का, मैं वो जाऊँगा। मुझे लॉस भी होता है, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है इसकी एक्सपेक्टेंसी वो है और अब देखोगे कि ये क्लोज़ नहीं हुई है ऊपर, सो आई एम मच मोर सेफर कि मैं इन दोनों फेयर वैल्यू गैप को कंबाइन कर दूँ, वरना क्या पता मुझे फिल ही नहीं मिला और इसका 50%। ज़्यादा अच्छा ऊपर होता है लेकिन फिर मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। ऐसी सिचुएशन पे आई एम फाइन विद कीपिंग माय स्टॉप इन दोनों कैंडल के बॉडी पे। डिड नॉट गेट फिल्ड। अगर तुम यहाँ पर एंटर करते ऑफ कोर्स तुम्हें फिल मिल जाता, लेकिन तुम्हें टारगेट वैसे भी नहीं मिलता। मेरी एंट्री यही थी। मैं जो करता हूँ अगर मुझे 1:2 मेरा टारगेट दे चुका होता है, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फिर। बिकॉज़ आई एम मोर कंफर्टेबल अवॉइडिंग माय ट्रेड्स, ठीक है? चाहे वो ए प्लस सेटअप भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नेक्स्ट डे हमेशा एग्ज़िस्ट करता है। अब मैं बस मार्केट को वेट करते हुए देखते रहूँगा क्योंकि अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर मार्केट आती है और यहाँ से मुझे 5 मिनट से रिएक्शन देती है, ओनली देन आई नो दिस इज़ गोना वर्क, वरना वो एक लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। ठीक है? गंदा मूव है बहुत। लिक्विडिटी स्वीप, ऊपर गई मार्केट जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया। यू विल नॉट टेक दिस ट्रेड फॉर द ओनली रीज़न कि तुम्हारी जो डिलीवरी है, अब तुम्हें प्राइस डिलीवरी यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट करके तुम्हारे फेयर वैल्यू आपको रिप्राइस करके तुम इग्नोर ही कर दोगे इस चीज़ को। तुम्हें बहुत क्लीन सेटअप्स चाहिए अगर तुम स्टार्ट आउट कर रहे हो। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम हर जगह घुसे जा रहे हो क्योंकि इवन दो दिस माय वे ऑफ ट्रेडिंग इज़ वेरी मैकेनिकल। इट इज़ इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल स्ट्रैटेजी, ठीक है? तुम्हारी डिस्क्रिशन हमेशा है क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की हुई है। मैंने देखा हुआ है कि अगर मुझे इस चीज़ पे लॉस होता, मैं पहले घुस जाता था, मुझे लॉस होता तो क्या रीज़निंग है? एक, लिक्विडिटी स्वीप नहीं मिली है मुझे यहाँ पर। दूसरी, मेरी डिलीवरी गंदी तरीके से है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करता रहूँगा। फॉर व्हाट? फॉर द डे टू गेट ओवर, यहाँ पर मेरी ट्रेडिंग वैसे भी बंद हो जाती है। डू नॉट एंड दिस इज़ वन मोर थिंग, यू विल ओनली ट्रेड 9:30 एएम टू 12 पीएम। मेरा जो भी काम होता है मुझे यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट क्या करे। दैट इज़ पर्सनली मी, ठीक है? मैं नहीं कह रहा तुम्हें फ़ॉलो करना है, तुम्हें अपने खुद से ढूँढना होगा। स्टार्टिंग आउट में मैंने ये समझ लिया था कि मेरे मेरे सबसे बेस्ट ट्रेड्स इस स्किल ज़ोन में हो जाते हैं। ये दिन खत्म हो गया, मेरा बायस बुलिश था। मुझे एक एंट्री मिली जो मैंने ली नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था। मैं जानता हूँ कि ऊपर से अगर हमें रिप्राइस करना भी है और ये यहाँ से नीचे आया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, इट विल गो फॉर दिस लो। ऐसे समझो, इस हाई का काम था इस लो को टेक आउट करना, अगर वो फुलफिल हो गया तो इस लो का काम क्या होगा, इस हाई को टेक आउट करना। अगर इसको टेक आउट कर दिया तो आई ऑटोमैटिकली इमेजिन कि नेक्स्ट चीज़ जो ये करेगा, ठीक है? आइदर इट विल कीप गोइंग फॉर सम एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो ये नॉट आई शुडन्ट से एक्सटर्नल, लेट्स यूज़ द वर्ड फॉर सम अदर लिक्विडिटी टू रिप्राइस और दिस लो। अगर उसने इसको रिप्राइस कर दिया, इस फेयर वैल्यू गैप को, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग इट कैन डू? आइदर कीप गोइंग अप, ठीक है? और गो गो फॉर योर लोअर वाली चीज़। सो
इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें ना आईसीटी से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना तुम्हारे माइंड में चलती रहेंगी सबकॉन्शियसली, और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम इतना सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कि ये तो बहुत सारी कंडीशंस हो रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ज़्यादा कंडीशंस का मतलब ये होता है कि तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से तुम पैसे कमाओगे। मुझे पता है मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मैंने 1000 बार लाइव ट्रेड की हुई है ये, ठीक है? कि ऑलमोस्ट क्या, ठीक है 1000 बार तो नहीं, पर मैंने 500 तो उठाई होंगी। 500-600 बार उठाया होगा मैंने ट्रेड, क्योंकि मैं बहुत ट्रेड्स लेता था स्टार्टिंग में। तो जब मुझे पता है कि ये सब सबकॉन्शियसली चल रहा है, तो मेरे लिए सिंपल है बहुत ज़्यादा अज़्यूम करना। ये दिन मुझे ट्रेड ही नहीं मिली, मेरा बायस बुलिश था, मैं बच गया। अगर मैं वापस 1 डे पे जाऊँ, मुझे क्या दिखता है, प्राइस जाता है, नीचे जाता है, सब कुछ फ़ेल कर देता है। व्हाट व्हाट डिड इट होल्ड? ये एक एक दिन का फेयर वैल्यू गैप, और ये सॉरी नॉट एक दिन का, ये क्या था, ऑर्डर ब्लॉक, और ये ऑर्डर ब्लॉक, दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अब तो मुझे पता है मैं बुलिश हूँ, अब तो मेरे सिंपल हो गया है सब कुछ। अगर मैं बुलिश हूँ अब, तो मैं इस सब को हटा देता हूँ। मैं अगेन क्या ढूँढ सकता हूँ, लॉन्ग्स। अब मेरे पास मेरा डेली बायस बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर मेरा डेली बायस हुआ है 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप 2 पीएम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये किल ज़ोन नहीं है मेरा। एक एक दिन आगे, नहीं, एक 4 घंटे 10, मैथ गंदी है थोड़ी, सॉरी।